Microbiology. Myself Harshita Gerwal. So once again I am back with my new video. So as per one of my subscriber asked me, what is the way to become a environmental microbiologist? So I feel that it's important to share that first topic and then move ahead. So today I am going to clear then how to become an environmental microbiologist. So by name itself, we could understood that what field we are reflecting here. So first of all, what is environmental microbiologist? Microbiologist. So as we all know, microbiologist, we all are familiar with that topic, but I am again clearing that. Environmental. When we refer to this topic, then it means that environmental, whatever the cycle was in between the human, the plants, the animals and the environment, how its environment become, जो भी इंटरेक्शन होता है सॉइल का, प्लांट का, माइक्रोब्स का, उनके होने के बाद, साइक्लिंग होने के बाद में उसका क्या इंटरेक्शन होता है, उसका क्या हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो इस तरीके की चीजों के ऊपर स्टडी की जाती है और उस स्टडी को किया जाता है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको ये क्लियर कर दिया। सेकेंडली, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनने के लिए हमें सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर कर लेना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे हम सब लोग जानते हैं, आफ्टर 12th it's very important to be graduate from any of a stream in which in further you want to become or you want to become your career. So in 12th we all have that a blueprint of our mind that whatever we have to go in further line, whatever we have to opt in our further life. So as per that, suppose I want to become a microbiologist, as I taken the biology in my 12th stream and then I opt for the graduation in microbiology and then I completed post graduation and now I am working as a doctorate. Now, so first of all we have to complete our graduation. Graduation in field in which you want to be. Suppose I was going for the environmental microbiology. So here you have two choice. Nowadays बहुत से ऐसे सारे कोर्सेज आ गए हैं, बहुत से ऐसे ग्रेजुएशंस आ गए हैं जो बहुत ही एडवांस्ड हैं, जो पहले के टाइम पे इतने अवेलेबल नहीं थे। जैसे कि मैं बात करूं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन माइक्रोबायोलॉजी में भी करते हैं तो भी आप आगे चल के एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी नहीं है बट यू हैव फार्मेसी और यू हैव इन बायोकेमिस्ट्री, a subject which is relevant to the biology directly or indirectly, you can also pursue further as an environmental microbiologist. Now after the completion of graduation in microbiology, I go for post graduation. Post graduation in the further streams where from you did your graduation. जहां से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है वहीं से आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता है। सपोज अगर किसी को लकीली या फॉर्चुनेटली उनको ग्रेजुएशन करने के लिए एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट ही मिल गया, एनवायरमेंटल ही मिल गया, देन इट इज सुपर डुपर हिट। देन यू कुड गो फॉर द ग्रेजुएशन इन माइक्रोबायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी एंड देन फॉर द पीजी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी. So these are the linear steps when you are going to certify yourself as a environmental microbiologist. So after completion of the post graduation, you become a microbiologist. But if you really won't have that gut to become an environmental microbiologist, then you have to do much more thing. Even I want to become a perfect microbiologist for the glorious year of life, then we have to do much more. We expect from us, we have to do much more. Then we have to go for the PhD or doctorate. You go for the PhD. During a PhD, you come to know about many of new things, about new of creators, discoveries, inventions, whatever reflect your environmental microbiologist work more, which enhance the more power of environmental microbiologist. फर्स्टली जब हम इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें ये जान लेना चाहिए कि इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट के जो फाउंडर थे वो कौन थे। तो जो फाउंडर थे उनका नाम था सर मार्टिनस बेजिरिंग एंड
सेकंड इज जो फादर भी हैं, दैट इज सर विन्सग्रेड्स्की. He is also a father of microbiology, that is environmental microbiology. Father of environmental microbiology. So, Sir Martinus Weijering and Sir Vinsgredsky is the founder of the environmental microbiology and Sir Vinsgredsky is the father of environmental microbiology as well. So सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि हमें environmental microbiologist में वर्क क्या मिलेगा इन फ्यूचर. सपोज आपने अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया इन माइक्रोबायोलॉजी और इन एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी. आफ्टर दैट यू परस्यू फॉर द पीएचडी एंड पीएचडी में आने के बाद आपका रियल स्ट्रगल या रियल जर्नी स्टार्ट होता है, क्योंकि आप यहाँ से ही चीजों को समझना शुरू करते हैं. आपने यहाँ पे अपना थीसिस को सबमिट किया, तो ड्यूरिंग दिस 3 इयर्स आपको इन 3 इयर्स के ड्यूरेशन में बहुत से काम करने को मिलेंगे, रिसर्च करने को मिलेगा, लैब में जाने को मिलेगा. आप खुद का भी कोई टॉपिक बनाएंगे तो उसमें भी आप कुछ ऐसी चीजों को रखेंगे जिसमें आपको लगेगा कि दैट इट्स रियली इनहैंस दी अपकमिंग थिंग्स. लाइक अगर आप किसी इन्वायरमेंट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो आप जाहिर सी बात, सबसे पहले आपका जो एक एम होगा वो होगा हाउ टू डिटेक्ट द पॉल्यूटेंट, हाउ टू मेक द इन्वायरमेंट पॉल्यूशन फ्री. ये सबसे फर्स्ट एक प्रायोरिटी रहती है एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट की, चाहे वो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो या फिर एक सिंपल सा माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो. सेकेंडली, जब आप ये सब चीजें करेंगे तो आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा. जब आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपको कुछ सर्टिफिकेशंस मिलेंगे. वो सर्टिफिकेशंस बहुत मायने रखते हैं. मैं ये नहीं कहती कि सर्टिफिकेशन किसी भी चीज के मैंडेटरी कर रहे हैं कि नहीं दैट्स अ प्रूफ दैट यू हैव द ग्लोरियस एज. नो, दैट्स नॉट अ मैंडेटरी, बट इट्स रियली वर्क्स गुड फॉर यू इन फ्यूचर एंड एट प्रेजेंट ऑल्सो. द रीजन इज वाई दैट इज, आप किसी भी चीज की, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी एक गैजेट लिया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक ब्लूटूथ डिवाइस लिया, तो हमें उसके साथ क्या मिलता है, एक वारंटी कार्ड मिलता है. हालांकि हम जानते थे वारंटी कार्ड वुड हैव टू बी एक्सपायर इन विद इन 1 year, but we have that kind of a positive aspect inside us that it's have the warranty. So if any kind of negative thing is happening in around 1 year, we have to just exchange it over. So that kind of patience given by the certification. जब किसी भी तरीके के रिसर्चर्स के पास में या फिर किसी भी एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के पास में एक सर्टिफिकेशन होता है, एक लाइसेंस होता है, तो जब वो अपने आप को किसी भी न्यू एरा में पुटअप करता है, उसकी सीवी बिल्डअप होती है, तो उसके पास में एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है he or she is working so hardly and she is full of spirit, full of enthusiasm, full of joy to do the new things and embark all the lines which may influence the career of the environmental microbiologist as well. तो इसीलिए सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस भी आपको मिलते हैं बाद में. जब आप किसी भी जगह पे वैकेंसी पे अपना वैकेंट देखते हैं तो जो आपको ऑप्शंस मिलते हैं इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजीज में, वो मैं आपको बताती हूँ. I hope you may understood the topic now. First of all, as environmental consultant, and second is environmental monitoring technician, third is entry level environmental lab analyst and environmental laboratory analyst. So these are the 4 which I line up here. सबसे पहले बात आती है एनवायरमेंटल कंसल्टेंट की. तो हम जाहिर सी बात है कंसल्टेंट से हम समझ सकते हैं कि किसी भी तरीके की कोई भी चीज आप कर रहे हैं लैब में. जैसे हम एक टेक्निक जानते हैं ना, बायोरेमेडिएशन. बायोरेमेडिएशन सबसे यूज होने वाली टेक्निक है जो एनवायरमेंट में यूज की जाती है किसी भी पॉल्यूशन को हटाने के लिए. ठीक है, तो इसी तरीके से चीजें होती हैं. तो ये बायोरेमेडिएशन कैसे आया, अपने आप तो नहीं आया ना. इट्स ऑल्सो नीड अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट और नॉट अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, एंड दे नीड्स अ discover or the invention. So come to the point. Environmental consultant का मतलब ये है कि आपने उसको कंसल्ट कैसे किया. सेकेंडली, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग टेक्नीशियन, जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसको आप मॉनिटर करते हो ना कि कोई चीज जो है सही तरीके से चल रही है. द प्लान वी स्ट्रेटेजाइज इज जस्ट गोइंग द वे इट इज वांट टू बी. जिस तरीके से हमें चाहिए कि वो वैसा जा रहा है, ये सब चीजें उसमें मॉनिटर करनी पड़ती है. टेक्नीशियन दैट मीन्स आपने जो भी अपना टेस्ट लगाया है उस तरीके की चीजों को हैंडल करना भी होना चाहिए. फिर आता है एंट्री लेवल एनवायरमेंटल लैब एनालिस्ट. एंट्री लेवल एनवायरमेंटल लैब एनालिस्ट
हम किसी भी लैब में जाएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द फुल एनालिसिस इन डाटा। डाटा को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, एंड फॉर दी very sure every researcher, every person who know about the PhD, they know that data collection is and data analysis is the backbone of the research. So उसी तरीके से आपके एनवायरमेंटल लैब एनालिस्ट में इस सब चीजों को एनालिस्ट करना भी बहुत जरूरी है। फिर आता है एनवायरमेंटल लेबोरेटरी एनालिस्ट। एनवायरमेंटल लेबोरेटरी एनालिस्ट का मतलब होता है जो भी आपके लैब में आता है एनवायरमेंट से जो भी रिलेटेड होता है उसका एनालाइज करना अबाउट द डाटा, अबाउट इट्स इफेक्ट्स, अबाउट इट्स वे, किस मेथड से आप पॉल्यूटेंट्स को कम कर सकते हैं, किस मेथड्स को अप्लाई करके आप चीजों को एक लीनियर वे में फॉर्म को ला सकते हैं। सो दीज आर द वे। नाउ एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजिस्ट का बहुत एक अच्छा ग्लोरियस फ्यूचर है। एंड साथ ही साथ में हम जब बात कर रहे थे सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस की, तो मैं एक बात और आपको बता दूं, सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंस के बेसिस पे ही आपको नासा जैसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब मिलती है। सपोज हम जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स को देखते हैं, जब तक उनके हाथ में सर्टिफिकेट नहीं होगा, वी आर नॉट एबल टू बिलीव दैट दे आर एमबीबीएस और द एमडी डॉक्टर until we don't have that degree certificate or we have that number. Similar to that, जब आपके पास सर्टिफिकेशन होगा, लाइसेंस होगा, तो उनको एक एश्योरिटी रहेगी that the person to whom we are elected is definitely responsible person to be found to be or to be in our organization. So NASA हो, ISRO हो, कोई भी अदर ऑर्गेनाइजेशन हो which is influenced to the government or to the super government, like they were the great institutions, great organizations, so they needs to have the certifications to have their own belief. So for that, so for example, if I become the food microbiologist for the food safety, then I also need to have a certificate to show where it needs to be. When if you are doing any medical, then you have the medical certificate of that. So certification is just a surety, not the mandatory. So I hope through the video you may understand how to become an environmental microbiologist in India. So in India, also many of the universities providing the special course which is based on the graduation of environmental microbiology and post graduation environmental microbiology. If you scroll on the Google, then you come to know about the many of the university which is NAC A+ credit. So they have the good points of the A value. So if you go for the south also, there were so many colleges, and also in the North India. So now it's the time, it was so हैप्पी बिकॉज टाइम में बहुत सी चीजें चेंज हो जाती हैं। आज के टाइम में जितना एक्सप्लोर आप अपने आप को कर सकते हो एजुकेशन में, आप उतना कर सकते हैं। एंड लकीली इट्स ग्रेटर टू बी कि हमारे इंडिया में भी ये चीजें हो सकती हैं, वरना बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो इंसान ये सोच के रह जाता है कि हमारे इंडिया में नहीं, फॉरेन कंट्रीज में ही हो सकती हैं। सो दिस इज द वेरी गुड एंड द लकी चांस फॉर ऑल द पीपल who wants to become environmental microbiologist or any other stream they wants to be, but it's good that everything is around us in our India. So I hope through the video you may understand how to become environmental microbiology and its aspects and its future aspects, and the questions all whatever you have asked to me, I hope you may understood it as well. So if you like my video, then please like my video and please subscribe my channel. If you not subscribe it, then subscribe it now, and I hope and I see you in the next video. So stay tuned. Thank you so much.